So do you think that these five are the holders of the future Champions League winner this year? I didn't see that coming. Welcome back to Football with Marcaroni, guys. And आज हमारे साथ yet again a special guest, Zishan from Talk Football. Welcome to the channel, Zishan. Thank you so much, bro. How are you? I'm fine, and first of all, congratulations, almost 40,000 subscribers. कैसा लग रहा है? Thank you so much. I'm literally not looking at those numbers. They actually don't mean anything to me. It just means कि हमारा crowd और expand हो चुका है, हमारी audience और expand हो चुकी है. That means कि we have to work harder, bring out better content, bring out much fine-tuned content. These are just numbers, but in numbers के पीछे हर सब कोई एक मतलब every number represents one person. So we are proud कि we have done this, but aim बहुत high है, so no stopping. Very good. I hope you don't stop anytime soon. And the very first video is going to be about the 5 biggest teams in Europe, one from each league. And ये actually में तो एक टाइप की prediction हो जाएगी कि भाई कौन सी लीग में स्ट्रॉन्गेस्ट टीम चल रही है इस वक्त. और ज़्यादातर हम ये बात नहीं कर पाते क्योंकि कोई ना कोई लीग किसी न किसी टीम से डोमिनेटेड होती है. बट ये साल जो ये क्रेजी ट्रांसफर विंडो हुआ है, इसके बाद तो ये साल में कई लीग्स की काया पलट गई है. और इस वजह से ये बात करने में बहुत मजा आएगा. सो वील स्टार्ट ऑफ विद ऑफ कोर्स द वेरी मच डोमिनेटेड बुंडेसलीगा. एंड आई वांट, ऑफ कोर्स वी नो कि इसमें कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है, बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग टीम एंड व्हाई. ऑलराइट, हाँ, the thing is कि without any disrespect to Bundesliga, सबको पता है it's not the toughest league in the world. It has been hugely dominated by the presence of Bayern Munich. And ज़्यादा fierce competition नहीं दे पाती है Dortmund, Leipzig, अलग और बाकी टीमें भी. It is hugely dominated by Bayern Munich because firstly उनका playing style, secondly उनके players, thirdly उनका जो managers, और उसके बाद से उनका यूथ सेटअप. दे ग्रेट बिजनेस इन द मार्केट. दे डोंट बाय ऑफ ग्रेट प्लेयर्स. लाइक ऐसा नहीं होता कि वो जाएंगे इन मार्केट में 100 मिलियन यूरोस का कोई प्लेयर उठा के लाएंगे. दे बाय वेरी प्रॉपर प्लेयर्स. लाइक gnabry को उन्होंने उठाया, नोबडी वाज पेइंग अटेंशन टू हिम. उसके बाद से यू सी मुसियाला को उन्होंने कैसे ल्योर इन किया. देन यू हैव फाउंड आउट साने वाज वन बिग साइनिंग, एंड देन दे स्पेंड one big player, that Lucas Hernandez. They thought कि यार ये बंदा तो रिक्वायर्ड है, एंड he has turned out to be a very good signing. Why I'm not considering Dortmund over here, not Leipzig. बहुत तगड़ी टीम है वो. I love Dortmund. मतलब अगर बुंदेसलीगा में मेरी फेवरेट टीम पूछोगे, it is Dortmund, just because of the youngsters, just because of the way they have been playing. Marco Reus, खासकर Erling Haaland, Jude Bellingham. The thing is कि they lose their fuel when they're reaching towards the end of the season. We see them cracking in their forms. ठीक है, frustrating defeats, frustrating draws, not clinical enough, seems to just running out of steam. Same happens with RB Leipzig, but somehow Bayern Munich till the end of the season maintain that form and they win it. And just not the Bundesliga, आप Champions League में भी देखे हो कि how well they have been performing, defeating the top teams from Europe. Very very clinical. Hansi Flick का जो time था, you know, जो उनका management है, that is very good. Actually they are very perceptive. उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, उसको तुरंत वो इरेडिकेट करते हैं. एक वो जो 50+1 रूल वाला जो बुंदेसलीगा में चलता है, that is really good because उससे ये है कि फैंस के पास भी पावर रहती है. एग्जैक्टली. तो डोंट यू थिंक कि ये जो एक मतलब बुंडेसलीगा में जैसे पिछले सीजन हमने देखा, लाइप्जिग वाज काइंड ऑफ यू नो टो टू टो काफ़ी सीजन तक, एज यू सेड कि एंड में आते आते फ्यूल खत्म हो जाता है. बट वी सी कि ऐसा बहुत बार होता है कि जो भी टीम बायर्न को टक्कर दे रही होती है, लाइक few years back डॉर्टमंड टक्कर दे रही थी बायर्न को, they won the Bundesliga as well. और उसके बाद बायर्न they shift the power to themselves. वो उन टीम से मेन प्लेयर्स यूजुअली हम देखते हैं, they buy those players. तो डू यू थिंक ये काइंड ऑफ एक मोनोपोली चल रही है बायर्न की बुंडेसलीगा में, और ये बुंडेसलीगा एज ए लीग काफ़ी मतलब ये चीज़ बुंडेसलीगा को थोड़ा डिग्रेड कर रही है? पता नहीं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एग्जैजरेट करते हैं. आई थिंक ये चीज़ प्रीमियर लीग में भी होती है. सिटी बाइंग एस्टन विला प्लेयर्स, लिवरपूल बाइंग शॉपिंग साउथहैम्पटन प्लेयर्स, खाली कर दिया. एंड बाकी टीमें भी अपनी लोअर टीम से बेस्ट प्लेयर्स खरीदती हैं. डिक्लन राइस की बात चली है, जैक ग्रिलिश चला गया, माने को खरीद लिया लिवरपूल ने. तो इट्स लाइक कि प्रीमियर लीग में भी ये चीज़ होती है, बट बुंदेसलीगा में इसका होना ज़्यादा नोटिसेबल क्यों होता है? क्योंकि बायर्न ही है जो ये काम करती है, एंड हर टीम के वो बेस्ट प्लेयर्स को उठा लेती है. बाकी टीमें भी है जो कुछ ऐसी साइनिंग्स करती है, बट दे डोंट कम इनटू लाइमलाइट इतना. मैं अभी आरबी लाइप्जिग का एक प्लेयर है एडम्स, उसका एक इंटरव्यू था छोटा सा, उसने बोला था एक बात कि आई लिटरली हेट व्हेन दिस हैपन कि कोई एक टॉप टीम का प्लेयर बायर्न जा रहा हो. आई हेट दैट.
तो it has happened after Upamecano, क्या नाम है उसका, Sabitzer, and उनका manager Nagelsmann all have gone to Bayern, and like it's literally making them overpowered. बेस्ट मैनेजर, बेस्ट प्लेयर्स आपके जा रहे हैं आपके राइवल क्लब में. ये आप ला लीगा में होते नहीं देखोगे. वेरी रेयरली प्लेयर्स फ्रॉम रियल मैड्रिड टू बार्सा गेट ट्रांसफर्स. अब अंटिल बार्थमू है तो वो तो कुछ भी कर सकता है. ग्रीजमान वाला सीन तो हो ही जाता है. बट देन अगेन आई थिंक मोनोपोली जैसा तुमने वर्ड यूज किया, दिस हैज टू चेंज एंड दिस हैज टू कम फ्रॉम द क्लब्स एज वेल. मतलब डॉर्टमुंड एंड आरबी लाइप्जिग को भी रियलाइज करना होगा यार कि नहीं, हमें ऐसे लेट नहीं करना है, अपने प्लेयर्स को नहीं जाने देना है. तो आई होप कि दिस वुड इम्प्रूव. बट इसमें बायर्न की कोई गलती नहीं है. हाँ, इसमें बायर्न की कोई गलती नहीं है. दे आर मेंटेनिंग देयर पाथ, दे आर अ यूरोपियन सुपर पावर, और उसके लिए उसको बेस्ट टैलेंट लाना जरूरी है. सो देन अगेन वी मूव ऑन टू अनदर लीग व्हिच इज काइंड ऑफ डोमिनेटेड, नॉट लास्ट ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट लीग वन. एंड पीएसजी इस साल बहुत अच्छा स्क्वाड है, बट पीएसजी के बारे में बात करने को बहुत कुछ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, योर इनटेक ऑन लीग वन. आई डोंट लाइक द स्टैंडर्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने इस साल लीग उन में लाइक प्रॉपरली पीएसजी के सारे मैचेस देखे हैं. जिस हिसाब से पीएसजी खेलती है, दे कम ऑफ विन अ गेम 4-1, 4-2. अगर कोई नॉर्मल व्यूअर है उनको देखेगा तो लाइक अरे 4 गोल ठोक दिया, वाओ, मस्ट हैव प्लेड ग्रेट. लेकिन ऐसा नहीं होता है. इट्स लाइक कि मैंने अपने एक वीडियो में काफी ज्यादा क्रिटिकल होके मैंने काफी गलत शब्द यूज कर दिए थे. बट देन व्हाट कभी कभार चलता है. आई सेड कि पीएसजी को देखना इट्स लाइक अ सर्कस, जहाँ पे प्लेयर्स हैं, दे जस्ट परफॉर्म, दे जस्ट डू दे मतलब अपने आप का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देते हैं. टीम गेम मुझे नहीं देखा. एंड ठीक है, फाइन, आई हैव बीन वाचिंग पीएसजी, बट लियोन को मैं काफी चैंपियंस लीग में देखता आया हूँ. लिल को लास्ट सीजन काफी देखा है, तो मुझे लिल बहुत ज्यादा इंप्रेस की थी बाय द वे दे हैव बीन प्लेइंग. एंड उनका कोई ऐसा नहीं था कि लाइक ओनली सिंगल प्लेयर. बुरक यिल्माज़ वाज डूइंग गुड, बट उनके यूसुफ यजीसी एंड ऑल काफी ज्यादा प्लेयर्स हैं. उनकी टीम से स्टेप अप किए थे. सेवन बॉटमैन गोलकीपर उनका एज वेल. तो व्हेन यू लुक एट पीएसजी, द कंपटीशन, जो चैलेंज बाकी टीमें उनको देती हैं, बट वी सी देम, वी फाइंड देम स्ट्रगलिंग एट टाइम्स, एंड वी सी कि क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं. बट देन अगेन किलियन एम्बापे goes berserk and goes on and scores a goal. Neymar dribbles 5 players and scores a goal. Di Maria burst off, scores a goal, and the game of 3-0 winners, and we're like, okay fine, chalo sab theek hai, they are winning. It's just like the game style is like that, particularly PSG. And yes, obviously they are the strongest team in the league. Doesn't matter उनका run of form खराब है, doesn't matter Leo Messi is not kicking off soon, he will, it's okay. No, but I'm just talking about their presence in the Champions League. मैं league उनकी पता नहीं बात करना पसंद नहीं करता हूँ. I always take league उन game as practice game for the Champions League for PSG. So अभी तक कह सकते हैं कि जो चैंपियंस लीग मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पीएसजी से, वो अभी तक नहीं निकल के आ रहा. बहुत सारे लोगों ने लीग वन अब देखना शुरू करा है, ऑफ कोर्स आफ्टर मेसी. पहले ज़्यादातर लोग नहीं देखते थे, एंड डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी बहुत ही मिली है. बट एक तरीके से देखा जाए तो लोगों को पता लगा कि भाई लीग वन की गेम ही यही है. तो उस हिसाब से सरप्राइज होना बनता है, या फिर ये जो स्ट्रगलिंग चलती थी कि चैंपियंस लीग जीतने में पहले स्ट्रगलिंग चलती थी और अब भी चलेगी, ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Actually, कुछ लोग हैं जो लोग देखते हैं PSG को, and when I talk about PSG time though, and I'm like, did I say Messi in that sentence? नहीं, I'm talking about the gameplay of PSG. We stop to talk about PSG and the people are like, अरे अभी तो आया है, जेल तो करने दो. I'm like, bro, when did I talk about Messi? या कोई और कभी भी PSG की बात कर रहा है? We don't specifically talk about Messi. Obviously, he has just come in. He will take time to gel and play together. But what about the whole squad? It's like nobody steps up, nobody plays at that level. एक vigor, एक work rate कम दिखता है मुझे. But you know what? They have been playing like that. मैं कब से देख रहा हूँ PSG को? 2014, 2015 के टाइम से PSG को देख रहा हूँ मैं. I've been watching their games, particularly Champions League में तो मैं mostly उनके games देखता था because they were great players. And then Neymar गया था, I used to watch. Verratti की वजह से मैंने काफी games देखे. उसके बाद से Lucas Moura था वहाँ पे, तो then I was watching the games over there. तो सीन ये है कि लोगों को अब रियलाइज हो रहा है कि पीएसजी खराब खेलती है. दे हैव बीन प्लेइंग लाइक दैट. समटाइम्स दे प्ले ग्रेट वन टच फुटबॉल, जो कि कभी कभार आंखों को बहुत भाता है. बायर्न के अगेंस्ट उन्होंने खेला, बार्सा को लास्ट टाइम थम किया यार. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सा को कोई भी हरा सकता था. तो एनी टीम दैट प्लेज अगेंस्ट बार्सा बिकम्स अ बेटर टीम इंस्टेंटली. तो आई थिंक विद द गिवन टाइम, विद द राइट ट्रस्ट इन द प्लेयर्स, प्रोबेबली बेटर मैनेजर देन पोचेटिनो, they would be doing good because they have got a squad. बहुत तगड़ा squad है भाई. We cannot write them off just because they had a few bad run of form. Next league, one of my favorite league right now because क्योंकि बहुत historic teams उठ के आ रही हैं. I'm talking about Syria.
फाइनली मतलब काफ़ी टाइम बाद बोरिंग कंपटीशन देखते हुए सीरिया में यूवेंटस का एक पूरा रेन चल रहा था. नाउ वी हैव गॉट सडनली दीज हिस्टोरिक टीम्स कमिंग बैक टू देयर फॉर्म्स, कमिंग बैक टू द टॉप. Which team do you think is gonna take it home this year? Bhai, Serie A. I mean, like, I cannot choose the best team, but I can give my favorite team. Yes, your favorite team. I love AC Milan. I have been following them. I've been a huge fan. Although it was dominated by Juventus most of the times. काफी लंबे टाइम तक AC Milan weren't winning. Last time शायद उन्होंने 9-10 सीजन में जीता था स्कूडेटो. उसके बाद से they haven't won it. शायद 9 साल से तो वही डोमिनेट करी थी. लास्ट ईयर इंटर won it, तो 10 साल तो हो ही गए. But I used to see them in the Champions League, and जब भी वो ऐसे I'm a Barca fan, तो बार्सा के ग्रुप में पड़ जाती थी. We had to travel to San Siro या फिर नॉकआउट मैचेस में पड़ जाते थे. एक टाइम आया था उसमें एक सीजन मतलब 2-3 सीजन में 2 बार मैचेस उन्हीं के साथ पड़ गए थे राउंड ऑफ 16 में. तो I used to see them and I used to fear them. Oh भाई, look at the players that they've got. Kaká used to be over there, Zlatan used to be over there. Oh bhai sahab, what a team they had made. And abhi bhi unke liye respect hai because Stefano Pioli, he's doing a good job. He's having some good bunch of players, young players coming up. लोन मूव्स भी उसने काफी कर रखे हैं. तो ही नोज की टीम को क्या चाहिए एंड ही इज इम्प्रूविंग इट. टैक्टिकली मैं नहीं कहूंगा कि दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट डिफेंसिवली दे आर सॉलिड. आगे ऊपर रफाल लेआओ, ओलिवर जिरू, सालिसमेगर एंड ऑल these guys are there. बट पता नहीं क्यों आई स्टिल फील कि एक्स फैक्टर उनको चाहिए, एक और कुछ स्लोली ही आएगा. दे हैव बीन अ ट्रांजिशन. 8 साल के बाद पहली बार चैंपियंस लीग में आए हैं, सो इट वुड टेक टाइम. थोड़ा उनके पास अभी पैसा, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी बेटर हुई है. तो आई बिलीव, मेरे हिसाब से दे हैव बीन माय फेवरेट टीम. बाकी डोमिनेशन तो तुमको पता है किसका रहा है. तो आपको क्या लगता है कि यूवेंटस को ये चीज रिकोप मतलब ये सब रिलैप्स करने में इस चीज से कितना टाइम लगेगा? अच्छा, आई मीन आर यू आस्किंग कि उनको उस जो ये टायर से हटाने में डोमिनेशन, वापस डोमिनेशन, क्योंकि वी नो यूवेंटस हैज गॉट द मनी, यूवेंटस हैज गॉट द बोर्ड, तो इवेंचुअली दे विल मेक इट एट द टॉप. पर हम कितने टाइम तक ये जो कंपटीशन है ये सब हम एंजॉय कर सकते हैं? आई थिंक स्टार्ट हो चुका है. जुवेंटस का डोमिनेशन था, अभी भी प्रोबेबली हो सकता है आ जाए दोबारा से. बट अभी करेंटली आप देख रहे हो कि दे आर स्ट्रगलिंग. विंस नहीं उनकी आ पा रही है अभी. बट ये कैन नॉट राइट ऑफ अ मैनेजर लाइक मैक्सिमिलियानो एलेग्री. नो, वी कैन नॉट. ही इज बैक होम. यू कैन नॉट, एंड इट्स जस्ट अ ब्लिप इन द फॉर्म. They will be finding their feet back. They've got great young players: Paulo Dybala, Federico Chiesa, Kulusevski, midfield में McKennie, Arthur, Rabiot. Everyone, Arthur fit हो चुका है, तो he'll also be probably one of the world's best defenders. Probably De Ligt, Bonucci, Chiellini की partnership. There are few places जहाँ पे they are lacking. Probably midfield में they need one creator, very अच्छा creator हो, wholesome. Paul Pogba की deal बात चल रही है. Let's see what happens. I think they are on the right track. Fine, currently they are struggling, but जो बाकी टीम है जिस हिसाब से डेवलप कर रही है, आई फील कि ये दोबारा से हमें वो उतना लंबा डोमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा. रोमा आर डूइंग ग्रेट. Mourinho has made his team really good, defensively solid, not conceding the goals, scoring plenty of goals. तो अटलांटा को तुम राइट ऑफ नहीं कर सकते. द वे ऑफ फुटबॉल गैस्परिनी मेक्स देम प्ले. तो भाई वी कैन नॉट सी कि वो 9 साल वाला डोमिनेशन फिर आएगा. इट कुड बी कि एक साल कोई टीम जीत जाए, अगले साल कोई और टीम जीत जाए, जो कि होना चाहिए एक अच्छी लीग में. ये दिस इज समथिंग व्हिच वी रियली लुक फॉरवर्ड टू गुड टीम्स. इसलिए प्रीमियर लीग इतनी फेमस होती है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लीग, दैट इज ला लीगा. और ला लीगा में तो ऑफ कोर्स वी नो कि भाई 3 टीम्स मोस्टली डोमिनेट करती है. बट इस साल काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं 3 टीम्स के अंदर. तो व्हाट इज योर टेक ऑन ला लीगा फर्स्ट ऑफ ऑल? भाई, यू नो व्हाट, आई हैव grown from hearing कि La Liga is a 2-horse race to La Liga is a 3-horse race. इस साल La Liga can be anything. मतलब people have been saying like that. But अभी आप स्क्वाड की बात करो, the best team in Spain right now is Atletico Madrid. Not with the run of form, but with the potential of their form. The best team right now at this moment is Real Madrid because they have been winning the games. They have been very clinical. Valencia को मिस्टर एबी 2018 के बाद हराया, 2-3 साल में पहली बार हराया. The players are rejuvenating, उनका फॉर्म वापस आ रहा है. डॉन कार्लो अंचेलोटी का टैक्टिक्स वर्क कर रहे हैं. पिंटस वहाँ पे काम कर रहा है उनकी फिटनेस पे. पूरा उनका अंदर से मैनेजमेंट इज सो फ्रूटफुल, इतना बढ़िया चल रहा है सब कुछ. दे टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. उनकी फिटनेस, बिकॉज गेम्स बैक टू बैक 2-3 दिन पे आ रहे हैं, तो दे हैव टू बी वेरी फिट. कार्लो अंचेलोटी से पिंटस रेगुलरली टॉक कर रहा है कि भाई इसको ज्यादा मत खिलाओ. ही इज टेलिंग हिम कि मेक बेंजेमा रेस्ट, मेक कैसेमेरो रेस्ट, बिकॉज उनका फॉर्म इफेक्ट होगा. जिस आपका मैनेजमेंट चल रहा है मैड्रिड पे, दे आर किलिंग इट. ठीक है, आई एम नॉट इवन गोना talk about Barcelona because they suck.
I'm a Barca fan, so I know what the hell is going on at my club. But Atletico Madrid को देखोगे, previously when this before the season had not started, start होने से पहले I made a prediction video जिसमें मैं बात कर रहा था कि top teams कौन सी होने वाली हैं. तो I gave Atletico Madrid in the top 3 rankings. जो squad उनके पास है, they deserve to be dominating ruthlessly. बिल्कुल. It is illegal what they are doing. इतना केजी गेम खेलना, नेगेटिव गेम खेलना. They have been unlucky, yes, but goals नहीं आ रहे हैं. Although concede भी नहीं कर रहे हैं, but काफी केजी गेम हो रहा है. They have been playing good. मुझे ये लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड बड़ी टीम के अगेंस्ट, बायर्न सिटी, चेल्सी के अगेंस्ट खेलेगी, तो just because they have been playing, मुझे लगता है हार जाएंगे. I just need to see them score goals. भाई ग्रीजमान है, जॉ फेलिक्स है आपके पास, कनेक्शन मेंटेन आपका नहीं हो पा रहा. अभी लुइस सुआरेज है. You just need to find that right connection. उन्होंने one of the best signings किए हैं इस ट्रांसफर सीजन की, डीप पॉल. तो I think कि they have the potential. Probably on a longer run अगर आप देखो तो Atletico Madrid can still win the league. The Madrid is there definitely. Title इस साल दोनों के बीच में होगा. ज़्यादा I'll be basing it on Atletico Madrid. Just a real quick question about Real Madrid. कि we know they have a very good squad, very good management, but ये डिफेंस के ऊपर थोड़ा सा लोगों का चल रहा है डाउट कि यार ठीक है, अभी तुम्हारे पास डिफेंस है, यू हैव प्लेयर्स यू कैन रिलाई ऑन राइट नाउ, पर इंजरीज अगर इनको हो गई तो इसके बाद कौन आएगा? क्योंकि ये प्लेयर्स वो थे जो तुम पहले इंजर्ड, मेन प्लेयर्स स्टार्टिंग 11 में इंजर्ड होने के बाद ये प्लेयर्स यूज्ड टू कि इन लोगों पे अंधा विश्वास कर सकते हैं हम, पर अब वही प्लेयर्स तुम्हारे मेन स्क्वाड में खेल रहे हैं, तो अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो फिर विल इट इफेक्ट रियल मैड्रिड टाइटल चांसेस? Exactly, that is a very good question, and यही क्वेश्चन बहुत बार मैं फेस किया हूँ. The thing is कि these are the secondary choices players जो now अब आके first choice बन गया है, because Ramos, Varane were the main players, they are gone now. But the thing is कि transition बड़ा smoothly हुआ है. Eder Militao का last season was very very crucial, जिस हिसाब से उसने क्या नाम है, Ramos and Varane को replace करके खेला वहाँ पे. Nacho again has been one of the best players at Madrid, very underrated guy. कभी भी उस पे count up कर सकते हो. Left back, right back, centre back, very versatile player. Me as a Barca fan talking about Madrid so deeply is like very weird, but I have been keeping a close eye on them because I respect them for what they have done. I respect how they treat their young players, chance देना and everything. Obviously Barca does that, ठीक है, but when जब Barca की बात आती है तो I talk about them as profoundly. But the thing is, what you are trying to ask is कि depth की बात है again. तो depth को अगर तुम देखोगे, I badly wish कि injury ना हो. Yeah, as a Barca fan, I wish injury हो जाए, but I shouldn't be doing that. किसी भी प्लेयर्स, हमें तो किसी भी प्लेयर्स के लिए इंजरी देखना पसंद नहीं होता. Definitely not. नहीं पसंद होता क्योंकि it affects the game all overall, पूरी टीम की. And me also, I'm also a Barcelona fan, but I respect Real Madrid for what they have done in football. But हाँ, ये चीज़ इंजरीज और स्क्वाड डेप्थ मे बी इट कैन इफेक्ट रियल मैड्रिड का रन इन लॉन्ग रन, बट सेम एथलेटिको मैड्रिड माय फेवरेट फॉर ला लीगा 2. एंड इसके साथ प्रीमियर लीग, बाप रे बाप, इस साल के जो मतलब ट्रांसफर्स हुए हैं प्रीमियर लीग में, जो टीम स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, क्या लगता है भाई कौन लेके जाएगा? Oh भाई साहब, प्रीमियर लीग अगेन. ओके, कैन नॉट अवॉइड इट, कैन वी? नहीं, कभी नहीं कर सकते. किसने बोला था कि इस साल की प्रीमियर लीग बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, बिकॉज एनी टीम इन द टॉप 4 कैन विन इट, इक्वल चांस है. गैरी नेविल ने बोला था शायद, ठीक है. एनीवेज, मेरा प्रेडिक्शन, ओ भाई साहब, लाइक यू सी सिटी one day they are like पागलपन खेलते हैं वो they play such fluid football. वैकॉम्बे के अगेंस्ट जो मैच हुआ, मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा, बट कोई बात है. एक छोटा सा लुक अगर आप दो तो they had the youngsters playing and still they thrashed them 6-1. Skip to the previous game, 0-0 draw kind of, क्या था, 1-1 draw, 0-0 draw, 1-1 draw, right? हाँ ठीक है, हाँ, sorry about that. But आप देख सकते हो कि कितने 16-17 shots, 1 on target. उससे पहले वाला गेम 5-0 win. उससे पहले वाला गेम अगेन ग्रेट गेम. पहला गेम 1-0 लॉस. थोड़ा सा up and down scene है. Still have to find their best run of form. You look at Chelsea, Spurs के against, I won't say they had a great game. They came out 3-0 winners. Chelsea are the team जो कि capable है कि अपने bad day पे भी they can get a 3-0 win. Just imagine what they would do on their best day. I'll leave it there. I won't undermine Liverpool because जो Liverpool की जो ये starting 11 है, they are the best. They have the best squad as the starting 11, but then again, going back to that question of the depth that you were asking, we have seen the players are getting injured. Harvey Elliott getting injured. A few more injuries issues concern coming up slowly, but अगर they avoid that, जो कि बहुत मुश्किल है, जो intensity Premier League में होती है उसमें, like you cannot
आपको इंजरी फिटी कुछ ना कुछ तो होना है, यू आर आल्सो कॉम्पिटिंग इन कैराबाओ कप, यू आर आल्सो कॉम्पिटिंग इन द चैंपियंस लीग, तो आपके वही सेट ऑफ 15 प्लेयर उस 3-4 टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, एंड लिवरपूल जैसी टीम है जो कि सब फ्रंट पे कॉम्पीट करती है, यू आर बाउंड टू स्ट्रगल। तो दैट्स द रीजन मैं नहीं कह सकता कि लिवरपूल फेवरेट्स है इस साल। सेकेंडली, आई कैन नॉट लीव टॉकिंग अबाउट मैन यूनाइटेड एज वेल भाई, क्रिस्टियानो ओवर देयर, हाउ कैन आई लीव दैट, लोग गोली मार देंगे मुझे। आई लव दैट गाय, उसका प्रेजेंस सोल रहना टीम में इज अ ह्यूज बूस्ट। तुम देख सकते हो ही हैज ऑलरेडी इक्वल्ड या पास कर चुका है द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द प्रीवियस नंबर 7 बेयरर्स, डी मारिया उसके पहले, और except Edison Cavani, he has overtaken all already. Exactly. तो जो उसका फॉर्म है, जो उसका स्टेटस है टीम में, स्टिल आई वोंट से कि दे वुड गो ऑन टू विन द लीग बिकॉज द टीम लैक्स a bit of tactical flexibility, एक अंडरस्टैंडिंग, एक मिड कंट्रोल, एंड ये बहुत पंडित्स बड़े बड़े ऑलरेडी इस बारे में बात किए, दैट बैडली नीड डिक्लन राइस हु इज नो मोर अ साइडवेज पासिंग मर्चेंट, he knows how to make those vertical balls, तो that guy is very needed। तो मिडफील्ड में थोड़ा सा और ये सटल हो जाएंगे और थोड़ा सा कंट्रोल ला पाएंगे तो इट वुड बी गुड, बिकॉज यूनाइटेड ऐसा गेम खेलती है कि उनको फॉरवर्ड्स को बॉल पास करनी है, बिकॉज दे हैव गॉट सच ग्रेट फिनिशर्स इन रैशफोर्ड जो कि अभी इंजर्ड है, बट ही विल कम बैक, ही विल बी ग्रेट। तो यूनाइटेड को भी मैं टॉप पे नहीं रखूंगा, आई वुड स्टिल गो विथ चेल्सी, बिकॉज अब तक जो मैंने देखा है वेरी कन्विंसिंग ऑन द बेस्ट डेज। लिवरपूल को हमने देखा कैसे होल्ड आउट किया, देन अगेन वी सॉ कि सिटी स्पर्स वाले गेम में फर्स्ट हाफ में स्पर्स वर गुड, रियली गुड, वो अटैकिंग बढ़िया, ओपन गेम चल रहा था, कोई भी जीत सकता था। अगर वो फर्स्ट हाफ में गेम एंड हुआ था, आई वुड हैव सेड कि चेल्सी प्लेड पुअर, बट देन इन द सेकंड हाफ दे केम आउट एज 3-0 विनर्स। तो ऑन द बैड डे दे कुड डू लाइक दैट। तो अभी तो पूरा सीजन बचा है, एंड टुकेल की मैनेजमेंट इज फैंटास्टिक मैन, ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ हिज फ्रिंज प्लेयर्स एज वेल। चालुबा खेलेगा, हडसन ओडोई खेलेगा, दिल किल इट। आई एम अ फैन ऑफ भाई टुचेल, और मैं क्या बताऊं, मतलब विद द डिफेंस ऑफ बैक थ्री, मतलब जिस तरीके से वो बैक थ्री, एंड लेट मी टेल यू कि भाई उसकी बैक थ्री में ऑनेस्टली सेइंग उसकी बैक थ्री में पेस नहीं है। इफ यू लुक एट द बैक रूडिगर का इंप्रूवमेंट, भाई ही हैज ब्रॉट आउट द बेस्ट ऑफ देम। और स्पर्स के खिलाफ फर्स्ट हाफ, वैसे यू सेड फर्स्ट हाफ में पीपल न्यू कि भाई स्पर्स ने 2 बारी और निकालना है काउंटर अटैक और चेल्सी का गेम खत्म हो जाना है, बट भाई उस बंदे ने सोचा ठीक है, सेकेंड हाफ में ही ब्रॉट व्हाट वाज नीडेड, ही ब्रॉट बैक कांते, ही मेड द नेसेसरी चेंजेस, और व्हाट अ गेम इन द सेकेंड हाफ। तो भाई चेल्सी को रोकना बहुत मुश्किल होगा, बट लेट्स से कि भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आई वांट टू नो योर पिक्स फॉर द टॉप 3, लाइक फर्स्ट यू सेड चेल्सी, आई वांट टू फर्स्ट चेल्सी, the next 2. Second, I'm gonna go with Man City just because of their squad depth. Pep Guardiola is a mastermind. Third team, I'm gonna go with United, and fourth Liverpool. Oh, I'm sorry Liverpool fans, but I wish कि कोई इंजरी ना हो। अगर लिवरपूल यही सेम स्क्वाड, यही सेम नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं अभी करेंटली, ये 38 गेम्स में खिला दे, they would surpass United. They would probably finish third. But United पास भी they have options. अब बस ओले के ऊपर डिपेंड करता है। क्रिस्टियानो इज देयर, तो एक क्रिस्टियानो फैक्टर वुड बी प्लेइंग अ ह्यूज रोल भाई। That's why I'm keeping them at the third place. Oh, that's great. Now first let's calm down for what are the 5 teams we have shortlisted yet. From Bundesliga we have Bayern, from Serie A we have AC Milan, from Liga we have PSG, from La Liga we have Atletico Madrid, and from Premier League we have Chelsea. Oof. So do you think that these 5 are the holders of the future Champions League winner this year? I didn't see that coming. This was the last final question. ये मैं सोच रहा था कि पहले 5 निकलवाने हैं, then I want to ask the main question. Okay, Champions League इन्हीं 5 में से नहीं. I think we are missing out on great bunch of teams from definitely Premier League for one, and La Liga में Madrid को भी नहीं छोड़ सकते हम अभी because of their run of form, and Inter Milan को भी हम अभी नहीं छोड़ सकते. I think these teams are also very good because Premier League में अकेले आप देख लोगे तो apart from Chelsea, City, United, Liverpool, ये 4 टीम तो ऑलरेडी हैं जो कि बहुत ही अच्छे रन ऑफ फॉर्म में हैं. तो प्रीमियर लीग से ही 4 टीम हो गई जो कि चैंपियंस लीग की ऑलमोस्ट फेवरेट्स हैं. Then again PSG half favorites kinds of because of the on paper तो they are winners. On paper तो by MSN फाड़ रहे हैं, MSN जीत रही है. तो on paper thankfully फुटबॉल नहीं होता है, उनको भी इंक्लूड करना है. पर आप मैं यूवेंटस नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं इंटर काउंट कर रहा हूँ. मैं प्रोबेबली आई कैन टेक द नेम ऑफ एसी मिलान, बट ठीक है अभी एसी मिलान पे इतना प्रेशर नहीं है. एसी मिलान नहीं होगी ऑब्वियसली, बट मैड्रिड डेफिनेटली, बोथ द मैड्रिड्स वुड बी ओवर देयर. थैंक्स अ लॉट
इस डिस्कशन के लिए. I hope you all agree with what Zishan said. I surely do. I don't think I would like to make any changes in the 5 he named. और अगर आपको लगता है कि आपको इससे ज़्यादा कुछ पता है तो do tell us in the comments. Check Zishan's channel if you haven't already. भाई मतलब ऐसा कैसे हो सकता है. और thanks a lot Zishan. And it was my pleasure, bye. See you in the next time. बिल्कुल बिल्कुल, thank you for inviting and it was a real pleasure to be over here and I'll see you soon, bye.